উনি আমার দাদার মতন, দীর্ঘদিন একসাথে রাজনীতি করেছি এবং যিনি তৃণমূল কংগ্রেস থেকে দাঁড়িয়েছেন ওনাকে আমি দিদি বলে ডাকি। একসাথে আমরাও কংগ্রেস করেছি। ঘটনা হচ্ছে এখানে যখন আমি 62 ওয়ার্ডে ক্যাম্পেইনিং করতে শুরু করেছি, তখন কোথাও ইলেকট্রিসিটি স্ট্রিট লাইট বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সাথে অনেক মহিলা মা বোনেরা থাকেন, আমাদের ছোট ছোট ভাইয়েরা থাকেন ক্যাম্পেইনিং এ। আমরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি। এরকম হতে পারে স্ট্রিট লাইট অফ করে দিয়ে আমাদের উপরে কোনো আক্রমণ চলে আসবে, ধমকানো হচ্ছে ফোন করে যেখানে যেখানে স্ট্রিট কর্নার করা হবে, ডোর টু ডোরে যাওয়া হবে, সেখানে যাতে আমাদের মা বোনেরা ভাইয়েরা আসতে না। জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী, জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল। দেশের স্বাধীনতা আনতে অনেক আত্মবলিদান দিতে হয়েছে। বিনীত অনুরোধ সেই সকল বিরোধী দলের কাছে যে নির্বাচনটা আজ থাকবে, কাল শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু এই যে মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার, গণতন্ত্র ওর উপরে যে অত্যাচার, আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল রাইট তার উপরে যে আঘাত, আমি চৌরঙ্গীর জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে তার প্রতিবাদ করছি। আপনাদের ডাকার এখানে এটাই উদ্দেশ্য, যেরকম চলতে থাকলে তো প্রচার করাই একটা সমস্যা এসে দাঁড়াবে। আমি দেখতে পাচ্ছি এই ওয়ার্ডের মধ্যে যে আমাকে নিয়ে কংগ্রেস প্রার্থীকে নিয়ে একটা উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও হয়তো বিজেপি বা তৃণমূলের যারা রয়েছেন তারা হয়তো ভয় ভীতি। তাদের কাছে অনুরোধ করছি, আমি তাদের চেয়ে ছোট, যে নির্বাচনের মধ্যে হতে দিন। আমরা জাতীয় কংগ্রেস কর্মীরা শান্তি নিয়ে থাকতে চাই। তারপরে জনগণ জনার্দন যা আপনাদেরকে এখানে ডাকা হচ্ছে। ধন্যবাদ। और लोग आपको धमका रहे हैं और आपने क्या इलेक्शन कमीशन से इससे कुछ शिकायत की? হ্যাঁ, ধমকাইছে। আমাদের ওই লোকেদের নাম বলবো না, তাদেরও নিরাপত্তার ব্যাপার আছে। যেখানে যেখানে যা বলার বলবো। আমি মেল করেছি, আমার চিফ ইলেকশন এজেন্ট সিইও কে মেল করেছে, কপি আপনারা পেয়ে যাবে। এটা কি শুধু 62 নম্বর ওয়ার্ডে হচ্ছে না আপনার অন্য অন্য ওয়ার্ডে হয়েছে? না, আপাতত 62তে শুরু হয়েছে। আচ্ছা, অন্য কোনো ওয়ার্ডে আপাতত হয়নি। আরো কোনো জায়গায় কোনো ডিস্টারবেন্স এরকম কিছু হচ্ছে না? না, এখনো অন্য কি রকমের হুমকি আছে? হুমকি মানে কি রকমের হুমকি? যে যাতে আমাদের প্রাণনাশের হুমকি পাচ্ছেন নাকি? হ্যাঁ, প্রাণনাশের হুমকি আপনার না, আপনার না, আপনার আমাদের কর্মী, কোনো ব্যক্তিগত আপনার কোনো কর্মী? আমাদের কর্মী প্রাণ নাশের কোনো হুমকি এখনো পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। যাতে না বেরোয়, আমাদের সাথে যেন না থাকে, দরজা বন্ধ করে রাখে, যাতে প্রচারে যেন আমরা ঢুকতে না পারি। কারা করছে? আর শাসক দল? শাসক দলের লোকজন হবে। পুলিশকে জানিয়েছেন? সব জানাবো, আগে আপনাদের জানালাম। সিও কে মেল করেছি, ইলেকশন কমিশনারকে জানিয়েছি। এখন তো অবজারভার ঘুরছে, গলি গলিতে অবজারভার ঘুরছে। এত বড় কাণ্ড হচ্ছে, দুদিন ধরে লাইট অফ করে দিচ্ছে, এর মধ্যে তো কোনো ঘটনা হতে পারে। হতে পারে তো, সেটাই তো আশঙ্কা প্রকাশ করছি। যে লাইট অফ করে দেওয়ার মানে একটা যদি কোনো কিছু আক্রমণ হয়ে যায়, তখন তো ধরে পড়া যাবে, ধরতে পারা যাবে। সিসিটিভি ক্যামেরার কাজ করবে না। তো যাই হোক, আমরা তার মধ্যেও লড়াই করব, শান্তিপূর্ণভাবেই লড়াই করব, শান্তিপূর্ণভাবেই প্রচার করব। তাহলে কি আপনি ভয় পাচ্ছেন? কি মনে হয় আপনাদের দেখে, যে ছেলেটি ছাত্র পরিষদ করে লড়াইতে আজকে এখানে এসছে, সে ভয় পাওয়ার ছেলে? ভয় পাওয়ার থাকলে তো তৃণমূল কংগ্রেস। इकराम साहब, थोड़ा सा डिटेल से आप ही बताइए, इस पर रोशनी डाले। कौन कौन से इलाके पर हो रहा है खासतौर पर? राम भाई, आपको क्या हम धमकियों की हो रही? बिकॉज मानस सरकार तो यहाँ रहते नहीं। फेस आपको करना पड़ रहा, बबलू भाई को करना पड़ रहा। 62 नंबर आप लोगों को स्पेसिफिक धमकी मिल रही है, आपको या क्या? देखिए, हम लोग यहाँ पे प्रचार जो है जुमा के दिन नमाज के बाद से शुरू किया। मगरिब के नमाज के बाद हम लोगों ने पहला डोर टू डोर शुरू किया शरीफ लाइन से। हमारे कैंडिडेट जैसे ही पहुंचे,
साथ साथ जो है स्ट्रीट लाइट ऑफ कर दिया गया। तो पहला दिन तो हम लोग ये समझा कि हो सकता है कि लोड शेडिंग हो गया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि तमाम घरों में लाइट है, दुकानों में लाइट है, सिर्फ स्ट्रीट लाइट जो है बंद कर दी गई। उसके बाद कल भी हम लोग जो है प्रचार में निकले आलिमुद्दीन स्ट्रीट में, तो वहाँ पे भी जो है, बल्कि आप सवाल जो कर रहे हैं आपने तो खुद कवर किया इस चीज़ को, पैगाम टीवी ने तो आप खबर कवर किया, सच टीवी ने कवर किया, बाकी लोग आप लोग थे, तो सभी लोगों ने कवर किया इसको। तो उसमें तो आप लोग खुद देखा कि भाई लाइट ऑफ किया गया, हम जैसे मौजूद हुए लाइट को ऑफ कर दिया गया, गली गली हम लोग गए, बिना रोशनी के अंधेरे में गए, बल्कि अपना मोबाइल का जो है टॉर्च जला करके जो है हम लोग वहाँ पे प्रचार में गए। प्रचार तो फिर हम लोग रोकेंगे नहीं, रोकने की कोशिश की जा रही है, हम लोग रोकेंगे नहीं। और जहाँ तक धमकी का सवाल है, तो धमकी तो दी गई है। आपके फोन में हम लोगों के पास जो है उसका वॉइस रिकॉर्ड है, जो धमकी दिए हैं वो नाम लेके धमकी दिए अपने लीडर का, जिनको धमकी मिला है उनका रिकॉर्डिंग हमारे पास आया है, हमको सुनाया गया है। ये सब हम जो है अपने कैंडिडेट श्री माया सरकार को हमने जो है फॉरवर्ड कर दिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में तो आपने बता ही दिया आपको कि इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेन भी किया है। नाम का जहाँ तक सवाल है, दादा भी हमसे पूछे क्या नाम है, तो हमने कहा कि देखिए भाई वो तमाम लोग जो है उनके साथ में हम लोगों का रोजाना का मुलाकात बात है। एक प्रेशर है उन लोगों का, पॉलिटिकल प्रेशर है, शासक राज्य में कोई भी गवर्नमेंट के लोग जो हैं, जाहिर सी बात है उनसे तो थोड़ा डर कहीं ना कहीं लोगों को है। तो वो डर निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई डरने की कोई बात नहीं है, डर से तुम लोग गलत काम कुछ मत करो। तो वो लोग अपने लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि साथ में लोग काम किए हैं तो जाहिर सी बात है रोजाना का सलाम कलाम लोगों से हमारी है। तो इस बार तो फिर नाम नहीं देंगे, लेकिन इस बार जरूर आप लोगों के माध्यम से बहुत से लोग जो है अभी लाइव देख रहे हैं, हो सकता है उसमें से वो लोग भी हों जो धमकाए हों, क्योंकि लोगों को भी मालूम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, उसके बाद भी फोन आया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप लोग पहुंचेंगे या बैठेंगे तो हम लोग जो है फिर एक्शन लेंगे। हमको ज्यादा खबर है आप लोगों में से भी किसी लोगों को जो है ना किया गया होगा कि आप लोग भी मत आइए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, प्रेस वालों को भी रोका जा रहा है। कोशिश लोग अपनी तरफ से जहां से हो रहा है लोग कर रहे हैं कि रोक दिया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रोका जाए, प्रचार रोका जाए, कैंडिडेट के सामने ना लाया जाए। एक दो जगह से पोस्टर भी खुला गया है, तो ये सब काम चल रहा है उन लोगों का। तो धमकाने का जो मामला है तो वो उन लोगों को हम यही कहेंगे कि भाई ये सब बंद करो, किसी के बहकावा में आने कोई फायदा नहीं है। अगर हम लोग नाम आगे फॉरवर्ड कर देंगे तो परेशानी तो होगी। विक्रांत साहब, ऐसा है कि आपके चुनाव प्रचार में मैं था कल, आपके चुनाव प्रचार में ज्यादातर औरतें रहती है, और इस अंधेरे में औरतों के साथ कोई घटना होती है तो ये जिम्मेदारी तो बड़ी घटना हो जाएगी। इसलिए तो आगाह किया जा रहा है ना कि ऐसा ना हो, इसलिए तो आगाह किया गया है। इलेक्शन कमीशन जो है उनको खबर की गई है, अभी पुलिस स्टेशन में भी हम लोग जो है जाकर के कंप्लेन करेंगे। आप लोगों के जरिए जो है कल आपने दिखाया भी है और आज भी हम आप लोगों के जरिए जो है खबर कर दिया जा रहा है, ताकि जो है लोग अलर्ट हो जाए, ऐसा कुछ घटना ना घटे। इसकी वजह से जो है हम अपील करेंगे आप लोगों से कि आप लोग पुलिस रहती है आप लोग के कल के प्रचार में तो आपने देखा कि पुलिस थी, उससे एक दिन पहले उसके पहले जो है पुलिस रिसोर्स नहीं थी। इकराम साहब, आप लोग 2024 में लोकसभा का इलेक्शन आपने कांग्रेस के बैनर से किया था उस समय, लेकिन ऐसा माहौल नहीं था। इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है ऐसा माहौल क्यों है ये तो आप उन लोगों से सवाल कीजिए कि किस बात की लोगों को परेशानी है। या हो सकता है लास्ट टाइम का जो रिजल्ट है उन लोगों को समझ में आया हो कि इस बार जो है और ज्यादा कुछ हो जाए, क्योंकि हालात जो है वो लोग देख रहे हैं, लोगों से जब वो लोग मिल रहे हैं तो लोगों को समझ में आ रहा है कि लोगों का रुझान जो है दूसरे तरफ है। जिस तरह से फूल की बारिश हो रही है उसी तरह से वोट की बारिश होने वाली है, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। शिकस्त के डर से क्या वार्ड में शिकस्त होंगे इसलिए इस डर से कर रहे हैं क्या? देखिए डर तो उन लोगों को क्यों है मुझे नहीं पता। अगर डर है तो क्यों है, डरने की तो कोई बात है ही नहीं। उन लोग क्या डरेंगे, डराने का काम कर रहे हैं, उन लोग क्यों डरेंगे। और हम लोग देखिए डरने का जहाँ तक सवाल है, हम लोग सिर्फ होशियार कर रहे हैं लोगों को कि भाई जो है ऐसा कुछ ना हो जाए। इसकी वजह से हम लोग जो है चाह रहे हैं कि अलर्ट कर दे लोगों को। आप चुनाव प्रचार आप लोग बंद कर रहे हैं? चुनाव प्रचार तो कल भी हम लोगों ने किया, परसों भी किया, आज भी हम लोग शाम में करेंगे और कंटिन्यू इंशाल्लाह प्रचार करेंगे। प्रचार बंद करने की क्या बात है? अभी इलेक्शन के प्रचार नहीं करेंगे, इलेक्शन के बाद प्रचार करेंगे। इलेक्शन के बाद 4 तारीख को आप लोग खुद आइएगा, समझ में आप लोगों को आएगा जब रिजल्ट, तो देखिएगा कि प्रचार का और ये जो हरकत हो रही है 62 नंबर वार्ड के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका जवाब जरूर 29 तारीख को इलेक्शन में वोट के दिन दीजिए। इकराम साहब, जैसा भी आपने कहा कि आपका कोई भी एक्टिविटीज हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, खबर मिल जाएगी। घर का भेदी कौन है? देखिए घर का भेदी की बात नहीं है, हम लोग भी मोहल्ला में रहते हैं, वो लोग भी मोहल्ला में रहते हैं। फोन से जब मान लीजिए कि अभी हम लोग आप लोगों को फोन किया, आप लोगों को मालूम हुआ, 10 आदमी आप लोगों को मालूम हुआ, ऐसे जो है फोन में बात होती है। प्लस हम लोग के यहाँ जो है बहुत से लोग आते जाते हैं, पब्लिक भी आते जाते रहती है, सभी के सामने ऐसे बात हो रही है। इसमें तो कौन किसने क्या कहा ये तो नहीं पता, लेकिन मालूम होना ये बहुत बड़ी बात नहीं।
कोई इन्फॉर्मेशन किसी को मिल जाए ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। होने वाला ये मालूम होना तो बड़ी बात है। रैली देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोग, आप लोगों में से प्रेस का तो जो हाल है और मीडिया का जो हाल है हमसे पहले तो आप ही लोग जानते हैं, इसके बारे में हम क्या बोलेंगे। आप लोग जब जी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, जो हकीकत है वही कह रहा हूँ। बीजेपी के साथ में जब आप लोग इंटरव्यू करते हैं, बीजेपी वालों के साथ में जब आप जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई बात होती है तो आप लोगों को रोका नहीं जाता, आप लोगों को कुछ बोला नहीं जाता, ना धमकी दी जाती है। लेकिन हम लोगों के बाद खाली 62 नंबर वार्ड में एक मामूली सा, जिसको आप लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, इसमें इतना परेशानी है, क्या बात है। अच्छा, एग्जाम में कांग्रेस पार्टी से डर है कि मानव सरकार से डर है, ये बताइए तो। देखिए ये डर उन लोगों को क्यों है, ये लोगों से पूछिए एक बार। मुझे लगता है कि 62 नंबर के आवाम से लोगों को, उन लोगों से डर हो गया है, क्योंकि 62 नंबर वार्ड के लोग जो है अब बदलाव चाहते हैं। अब जो है वो बदौलाबाजी और क्या बोलते हैं उसको, जो भाषणबाजी जो है ना, उससे अब पना चाह रहे हैं वो लोग। अब ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो है सिर्फ बात हो और काम कुछ ना हो, अब काम चाह रहे हैं लोग। फूलों की बारी जिस तरीके से हो रही है 62 नंबर वार्ड में मानव सरकार के ऊपर देखा गया कल, इस तरह से डर गई है क्या? अब ये बात उनसे पूछिए ना, ये बात जाकर उन लोगों से पूछिए कि किस चीज का डर खाया हुआ लोगों को। जिस तरह से लोग सामने आ रहे हैं खुल करके, लोगों की डर है, लोगों को 62 नंबर वार्ड के लोग से डर है, हम लोग से नहीं डर। लेकिन लाइट इस तरह से ऑफ की जा रही है, कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता के बोलने से लाइट ऑफ नहीं होगा, इसमें अपर हैंड्स है, जरूर शामिल होगा। तो ये क्या है, ऑर्डर सब ऊपर से आ रहे हैं। आपका सवाल ही तो आपका जवाब है, आपने जो सवाल किया वही आपका जवाब है। सही, वो अपर हैंड्स कौन है? ये भी आप लोग कुछ समझ रहे हैं, बताने की जरूरत है। हमने कहा हमारे पास रिकॉर्ड, हमने कहा आपको कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है, नाम भी है। इस बार छोड़ दिया है, आइंदा नाम के साथ रिकॉर्डिंग के साथ आप लोग को सुनाया जाएगा। इस बार सिर्फ इसलिए छोड़ा जा रहा है तो वो लोग भी हमारे अपने हैं। मतलब आप अलर्ट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ अलर्ट कर रहे हैं, धमकी नहीं है, ये अलर्ट कर रहे हैं। बबलू भाई क्या बोलेंगे? बोलिए। कितना डर लग रहा है बबलू भाई? देख रही हम नाराज है, देख रही नहीं हम काम रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, बात भी नहीं कर सकते आप लोग, इतना डर लग रहा है। ये देखिए बात डर भर का कोई बात नहीं है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि माहौल खराब ना हो। हम लोग का बस यही है कि भाई आप अपनी बात रखें लोगों के सामने, हम अपनी बात रख रहे हैं। वोट तो लोग देंगे, जनता जनार्दन वोट देंगे, वोट के माई बाप वही है। अगर उनको हमारी बात समझ में आएगी तो वो हमें वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। अगर आपकी बात समझ में आएगी तो टीएमसी को वोट देंगे। इसमें झगड़ा कहाँ है भाई? आप अपनी बात रखिए सहूलियत से, हम अपनी बात रख रहे सहूलियत से। आप अपना कैंपेन कीजिए, आप गली गली जाइए, आप रैली कीजिए, आप जो कर रहे कीजिए, हम जो कर रहे हम लोग को करने दीजिए। इसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है भाई, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ये तो हमारा हुकूक है कि भाई हम भी घर घर जाके अपनी बात बता सकते हैं जनता को, तो हम तो वही कर रहे हैं। अब बाकी चीज जनता में छोड़ दीजिए, जनता को जो समझ में आएगा वो अपना फैसला दे देगी। 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, पता चल जाएगा कि 62 वार्ड की आवाम क्या चाहती है। इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर धमकी देना, लोगों को जाके बोलना, हमारे साथ ज्यादा महिला रहती हैं आप लोग देखते हैं, उनकी बेइज्जती करना, उनको 2-2 पैसे का 200 रुपए की औरतें बोलना, ये तो अच्छी बात नहीं है। इस वार्ड की काउंसिलर भी औरत है, इस वार्ड की एमएलए भी अभी औरत लेडी है, स्टेट की चीफ मिनिस्टर भी लेडी है। कम से कम औरतों का तो इज्जत कीजिए भाई। आप लोग क्या हो गया, आप लोग औरतों का इज्जत नहीं कर रहे, ये तो गलत बात है। हमारा यही बोलने का मतलब, आप अपना काम कीजिए, हम तो आपके किसी वर्कर को कुछ नहीं बोलते भाई। जो आपके वर्कर है वो भी इस मोहल्ले में रहते हैं, जो हमारे वर्कर है वो भी इस मोहल्ले में रहते हैं। रोज हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत होता है, सलाम दुआ होता है, सभी कुछ होता है। अभी इलेक्शन है, आप अपनी बात बोलिए, हम अपनी बात रख रहे हैं, इसमें क्या हर्ज है भाई? और आपको अगर कोई डर है, कोई भय है, तो वो तो आवाम जिसके हक में फैसला कर देगी वो हो जाएगा। चौरंगी में हमेशा 62 नंबर वार्ड जो है विनिंग फैक्टर रहा है, अच्छा खासा लीड यहीं से मिलता है। क्या लगता है इसी लेगेसी को बरकरार रखने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही है? देखिए 62 वार्ड में लीड जो मिलता है, तो जब मिलता था, अब तो पिछले इलेक्शन से आप लोग ने देखा, एमपी इलेक्शन में कांग्रेस को भी माशाल्लाह अच्छा खासा वोट मिला था, और इस बार भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत। इस बार भी इंशाल्लाह ताला हमारे कैंडिडेट को और हमारी पार्टी को अच्छा वोट मिलेगा। जब इस लीड के लिए ये सब झमेला करके तो नहीं होगा। आप स्ट्रीट का लाइट बंद कर दीजिएगा तो लोग अंधे तो नहीं हो जाएंगे भाई, लोग वोट देंगे। अंधेरा करने से तभी भी उनको समझ में आ रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है। लोग बोल रहे हैं, हमारे साथ औरतें रहते हैं, लोग रहते हैं, बहुत सारे आदमी रहते हैं भाई। कुछ हादसा हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी औरत के साथ कोई घटना हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग ही होंगे। औरतों की सुरक्षा के लिए आप लोग किस तरह से क्या करेंगे जब इस तरह के इंसिडेंट हो रहा है? दिखेगी फिर दोबारा
औरतें इस तरह से ज्यादा देखी जाती है, तो औरतों की सुरक्षा के लिए आप लोग किस तरह जैसे कि हमारे कैंडिडेट ने कहा है, ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल कर दिया गया है, हम लोग पुलिस को भी जाए, और कल जो भी हरकत हुई पुलिस के सामने हुई, लाइट लोड शेडिंग जो उन लोग ने लाइट बंद करवा दिया था, तो वो तो पुलिस थे हमारे, वो लोग भी देख रहे हैं, तो हम लोग को जहां कंप्लेन करना करेंगे। और जहां तक धमकी की बात है, हम अभी दरख्वास्त करके कह देने कि भाई ऐसी हरकतें बंद कर दीजिए, और अगर नहीं बंद होगी तो फिर जैसे आप इकराम भाई ने कहा है कि रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, फिर वो हम लोग आपके सामने पेश करेंगे। ये लाइट कौन बंद करवा रहा है? ये लाइट जो रूलिंग पार्टी है वही बंद करवाएगी ना। सुनते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, जो रूलिंग पार्टी है वही बंद करवा रही है। परेशानी यहाँ किसको है? देखिए, इस वार्ड में सिर्फ कांग्रेस है और टीएमसी है, यहाँ तो कोई और पार्टी है नहीं। जो लड़ाई भी है वो यहाँ इस वार्ड में कांग्रेस और टीएमसी का है, तो ये काम कौन करवा रहा हो? टीएमसी पार्टी करवा रही है। परेशानी उनको है और तो किसी को परेशानी है। टीएमसी पार्टी पर करेंगे या पर्दे पर करेंगे? वो हमारे उन्होंने तो जाहिर सा बात है कि पार्टी पे वर्द वाहिद पे कैसे किया जाएगा, वो तो जो पार्टी पर ही कंप्लेन किया जाता है ना, जो करवा रहे हैं उन लोगों बबलू की साहब, कंप्लेन किया जिन लोगों को धमकी मिला है उन लोगों को सामने क्यों नहीं ला रहे? नहीं, उनको भी सामने लाएंगे। जिन लोगों को धमकी मिला है उसमें कुछ लेडीज हैं, कुछ जेंट्स हैं। अभी हम देखिए, हम लोग आप लोग के माध्यम से दरख्वास्त कर रहे हैं कि ऐसी हरकतें ना करें, और बाद में सबको लाएंगे। जिन लोगों को धमकी मिला है, हम जो भी बात बोल रहे हैं विद एविडेंस बोल रहे हैं ना। आपसे तो कहा है कि रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, नंबर है, आजकल तो आप जानते हैं सब कुछ मिल जाता है, रिकॉर्ड हो कोई ऐसी बात नहीं है। हम इस टाइम पे कहाँ पर है, कहाँ है, मेरे टावर से सब कुछ मिल जाएगा, ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है। हम अभी यहाँ बैठे हैं, मेरा टावर अभी लोकेट कीजिएगा, पता चल जाएगा कि मैं यहाँ शरीफ लेन में बैठा हूँ। तो मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि भाई आप अपना काम पुरसुकून से कीजिए, हम लोग अपना काम भी पुरसुकून होके करेंगे। हम तो आपसे कुछ कंपटीशन में जा ही नहीं रहे, हम अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात कहिए, बाकी जनता जनार्दन पे छोड़ दीजिए। इसके बावजूद भी अगर इसी तरह का अगर हरकत रहा तो फिर आपको क्या करेंगे? तो फिर इसके बाद में अगर ऐसी हरकत रहा तो फिर आप लोग को एक बार और जहमत दिया जाएगा, आप लोग आइएगा और फिर हम आप लोग को सबूत के साथ पेश करेंगे, और फिर जो हम लोग से कर बन पड़ेगा तो करेंगे। टीएमसी की आज रैली भी है, एक आज टीएमसी की आगे रैली उनको भी है, बोलिए। एक सेकंड, आज टीएमसी की रैली है, क्या उस पर भी आप लोगों की नजर रहेगी या फिर उन लोगों की नजर आप लोगों पर? हमारी नजर उनकी रैली पे क्यों रहेगी? हमारा जो अपना काम है हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करे, वो रैली करे, जो भी करे, हमसे क्या लेना देना। वो उनका पार्टी का काम है, हम अपना पार्टी का काम कर रहे हैं। हम लोग अपना डोर टू डोर है वो हम लोग करेंगे आज इंशाल्लाह। लाइट जो बंद हो रहा है वो तो कारपोरेशन का रहता है, लैंप पोस्ट। जी, तो केएमसी का जो लाइट डिपार्टमेंट का आदमी से आप लोगों ने बात किया कि भाई कौन कौन बंद कर रहा है? वो लोग कोई नजर ही नहीं आते हैं। पार्टी वालों का हाथ में तो नहीं रहता ना, पार्टी वालों के ही हाथ में रहता सब कुछ। यहाँ भाई यहाँ पर केएमसी का मालिक यहाँ कौन, बॉस कौन है? अरे केएमसी का बॉस कौन है? जो बॉस है उससे कई लोगों के पास। बोलो। मानस दा, आप कैंडिडेट है, कितना ज्यादा फेस करना पड़ेगा यहाँ पे? क्योंकि আপনি CPI আমাদের के भी আপনার नंबर है। কর্মীদেরকে কি বার্তা দেবেন এখানে? আর মেয়রকে কি আপনি বলবেন? এটা তো মেয়রের আন্ডারে পড়ছে। সকলে জানে, এভরিবডি নোজ যে আমাদের কলকাতার কর্পোরেশন কিভাবে চলছে, কি রকম হবে অবস্থায় রয়েছে। শুধু আপনাদেরকে একটা কথা বলি, আমাদের নেতা হচ্ছে রাহুল গান্ধী, আমরা রাহুল গান্ধী রাহুল গান্ধী বলেছেন ডরো মত, ওনাকে ভয় পাই। আমরা ভদ্রতা দেখাচ্ছি, তার মানে আমরা উইক নই, আমরা সব দুষ্টুকে দমন করার জন্য কি করতে হয় উই নোজ ভেরি ওয়েল। আপনাকে বলছি আপনি ভালো হয়ে যান, ভালোভাবে কাজ করুন, আমাদের কাজ করতে চান, আমাদের মজবুর করবেন না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি রাস্তায় নেবে, আরো বেশি করে জনসমাগম করে আপনার বিরুদ্ধে কিছু করা। শুধু একটা কথা হাত জোর করে আবার বলছি, ইলেকশন আসবে, ইলেকশন যাবে। আমাদের রাহুল গান্ধীকে যখন ভয় পাওয়াতে পারেনি, আমি মানস সরকার চৌরঙ্গির মতন একটা ভাইটাল জায়গার যখন তাদের দায়িত্ব দিয়েছে, আমার সেই ক্ষমতা আছে এবং আমার কর্মীদেরকেও বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমার উপরে পড়ে। যদি কিছু হয় সবার আগে আমার উপরে হবে, তারপরে আমাদের কর্মীর সাথে হবে। শেষ রক্ত পর্যন্ত আমি আমার ওয়ার্কারদের সাথে থাকবো আগামী দিনেও। রাহুল গান্ধী কি আসছেন কলকাতাতে? ইয়েস, আজকে খবরটা পেয়েছি রাহুল গান্ধী কলকাতায় আসবে। কবে? আপনারা কি উনি কি 14 तारीख को मानस था। ভাষণ দেবেন? রায়গঞ্জে যাবে, কবে আসছেন চৌরঙ্গী রাহুল গান্ধী জন্য- কলকাতাতে? আর ওটা চৌরঙ্গিতে আসবেন? 23 তারিখের সেকেন্ড ফেজের পরে আসবে। চৌরঙ্গিতে সভা করবেন? আশা করছি দুটো সভা হবে, জানি না কোনো কনফার্মেশন কিছু পাইনি, চলছে কথাবার্তা, হওয়ার চান্স খুব হয়েছে। রাহুল গান্ধী রয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও আসার দলকে রিকোয়েস্ট করবেন ওনাকে আসার জন্য? দলকে ডেফিনেটলি আমরা রিকোয়েস্ট করেছি, আমরা চিঠি দিয়েছি, আমি দিয়েছি।
ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे आप मोहतरमा? आप खुद एक लेडीज है, अभी जो हालात है ये बताइए, आप कांग्रेस पार्टी कर रही है और डर का क्या डर लग रहा है आपको, ये बताइए। बिल्कुल नहीं है जी तो हमारे खून में ही नहीं है। जी देखिए हम पार्टी कर रहे हैं, हक के लिए कर रहे हैं और सही रास्ते में चलने के लिए। हमने देखा कि राहुल गांधी जी, आप सबने देखा है कि किसी सही रास्ते पे चलते हैं। आप उनको देख के मैं राहुल गांधी की स्पीचेस सुनती थी, मैं उनसे इतनी मोटिवेट हो गई, मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। तो मैंने देखा ये पार्टी जो है ये सही काम करती है और सच्चे रास्ते पे चलती है और ये चाहती है कि हम माइनॉरिटी भी आगे बढ़े, कुछ काम करें। ये और सब पार्टियों की तरह नहीं है जो हक के लिए लड़ती है और हक में चलती है और हमेशा हक के साथ ही रहना चाहिए। तो हमारा बस यही दुआ है और उम्मीद है सारी जनता से। मैं यही गुजारिश करूंगी, आप सब अपने पार्टी, जिस पार्टी को वोट दे रही है उनके लिए पहले सोच ले, समझ ले कि कैसी पार्टी है और वो आपके लिए क्या कर रही है। मैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए हूँ, तो मैं सबके साथी हूँ। आप सबको बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि पार्टी आप देखिए और आप अपना वोट सही जगह दीजिए। कास्ट योर वोट इन फेवर ऑफ कांग्रेस पार्टी। मैं तो यही कहूंगी, अब आपकी सोच, आपकी समझ, मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, सबका दिल है और सबकी समझदारी है, सबको आंख दिया अल्लाह ताला ने, दिमाग दिया है समझने की। आज की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है हमारे साथ, आपकी जो प्रेजेंट वेस्ट बंगाल की आप सब देखते हैं कि क्या हालत हो रही है सबकी। ये परिवर्तन चाहिए, हम परिवर्तन लाना है। हम सबको बस यही गुजारिश करते हैं कि परिवर्तन लाइए। जस्ट फॉर आप चेंज करके तो देखिए इन 5 सालों में क्या हो रहा है, हमारे देश कितनी आगे तरक्की करे, हमारा वेस्ट बंगाल क्या तरक्की करेगा और कैसे आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। तो बस यही उम्मीद है हमको। जी आप भी कुछ कहेंगे? जी बोलिए। बैनर वगैरह जो फाड़े जा रहे हैं ना हमारे, उस पर एक शेर है, बैनरों माने बैनरों झंडे उठा लिए गए तो क्या गम है, बैनरों झंडे उठा लिए तो क्या गम है, लोगों के 62 के लोगों के दिलों में जगह बना ली हमने। ये क्या काम बोलिए जुमला मुकम्मल की। और दूसरी बात यह है कि देखिए झंडा उठा लेना और किसी को फ्लैग ना लहरा देना, उठा लेना फ्लैग को हटा देना, ये अनडेमोक्रेटिक है। और अनडेमोक्रेटिक वही लोग करते हैं जो कॉमनल होता है, जो कॉमनल होता है वही अनडेमोक्रेटिक। बीजेपी कॉमनल है, वो अनडेमोक्रेटिक करती है और साथ साथ में आप समझ लीजिए कि उसके साथ साथ में टीएमसी भी कॉमनल वे में उड़ी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।